Hello student. Now we are going to start our webinar. Mr. Jayesh Gehlot is with us and he is going to present a webinar on environment awareness and legal framework. Mr. Jayesh Gehlot is environment manager and welcome sir. Yeah, thank you. So we can start so now. Yes. So, good morning, all. I think you all would be aware with the environmental issues and environmental theme, what exactly the environment and how it interacts with the other over components. So, today's session will be basically we'll discuss on this requirement or in the aspect only, so that a general understanding about environment can be developed, and in further session I will try to take you through the specific requirement mentioned you in your syllabus. So what language would be preferable, like we can have a Hindi in between, or it should be a pure English? So Anyone, sir, anyone. We are comfortable in both of the language. okay. So basically, I will take you through the environmental, what the definition of environment and sustainability, and then we'll have a certain things about the environment management system, and in the last, I will share you with the legal framework, basically on upstream industry. So you would be aware that the oil and gas sector is divided into the three sectors, which is upstream, midstream, and downstream. So basically, what we are doing in Barmer is a upstream industry actually, where we have only the oil exploration, physical separation, and then we transport it through, and then we transported this separated crude hydrocarbon fluid to the uh, down industries, which is basically the refineries. So there are three sections. First is upstream, where oil wells are there. The next section is midstream, where basically the pipeline section is there, or where the media by which we transport crude to the further downstream industries, which is basically the refineries. So we can move the slide. So hello. Sorry to Yes, sir. interrupt sir. The one thing I want to ask you that the screen is visible to all of you. Yeah, it's visible, sir. Okay, if anyone is not able to see the screen, then please pin on the GC Badmer. Okay. If anyone is not able to watch that screen, please pin on GCBARC. Okay. If you pin that, you will be able to see the screen. Okay. Okay, sir. Start. Yeah, so we can move to next slide. So here there are 4 5 points. We'll have a general discussion on that is environment and sustainability. What is exactly the environment and sustainability means? The drivers of environment management. What exactly drive these environmental issues nowadays? And then the environmental impacts of exploration and production industries, specifically for the upstream industries, which we are having operation in Badmer, and environmental legislative framework in India. So what are the environmental legislations are there which requires to be complied by the industries. So and the environment regulation compliance obligation is also covered in that pattern. Okay, so move on to next slide, sir. So basically, the what is environment? If anyone can give some light on that, what do you understand with the meaning of environment? Any student? Hello? Yes, sir. Yeah, any student can
uh, give some light on definition of environment. What is environment actually? What do you understand with the environment? The term environment. It's visible on your screen also. So without understanding the environment, we cannot move further. It would not be you will not be able to connect with the environment basically. What are the requirements, how it impacts industrial activities, how impacts on environment, how we should manage the environment, what we can do is there to control air, water pollution. So the basic requirement to understand the definition of environment is necessary to start with this session. So okay, so I will just explain the surroundings. Okay, whatever the surrounding, like if you are sitting in your hostel room or you're in your home, so what surrounding you have? Okay, in your particular area, what surrounding you have? In your surroundings, you might be having some air, okay, water, land, natural resources, flora, fauna, humans. Okay, so when all these components are interact with each other, then this interrelationship will create an environment. Okay, because air is necessary for us, water is necessary for us, land is necessary for us, natural resources like this sunlight, minerals, earth materials, these are the natural resources. Flora means basically plants, and the fauna is are the animals, and then the humans. So wherever these three things are interacting with each other, they create a environment. Like in the picture, if you can see that atmosphere is basically the air, hydrosphere is basically the water, and lithosphere is the earth. So when all these three things are meeting at one point, which create a ecosphere. So in ecosphere, basically we live in. So this ecosphere is basically a like environment. So where atmosphere, lithosphere, and hydrosphere are the non-living things, but ecosphere is having a plants and other living things. Okay, and similarly the sustainability. So sustainability is basically the meeting of present requirement by sustaining or by conserving our environment for so that it should be available for future generation. So definition is basically the development which meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. So here in sustainability, environment, social, and economic, all these three aspects should be merge or meet. Like here we see the atmosphere, hydrosphere, and lithosphere are merged, and then only ecosphere can be created, or where only the person can live. Similarly, where environmental, social, and economic aspects are meeting, at that point only a sustainable environment can be created. Because if you see the social need are not fulfilled, if economically any project is not economically feasible or viable, or environmental things are not exactly addressed to meet the sustaining the existing scenario, then there cannot be a sustainable environment created. So sustainable environment only created when all these three things are feasible or viable to implement. So now I think basic understanding we have got. So again, I asked some student, any student can give me the definition, what you understand with this. So sir, move on to next slide. Yeah, so in this slide, what you can understand? Any student can explain? In Hindi also would be okay, no issue. So in this slide, uh, it is shown that the environment is basically having a two type of component. First is abiotic component, which is actually non-living things, जो जीवित नहीं है,
they are called abiotic component, which is like soil, water, atmosphere and energy, and biotic, which is living thing, जो जीवित है, so that is flora and fauna. So again, this definition, if you read it, surroundings in which an organization operates, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, humans, and their interrelations. So this is the basically the interrelationship with the abiotic and biotic factors are create the environment. Okay, any question? No, sir. Yeah, so I'm audible properly, or I'm going fast or slow, or it is okay? Yes, sir, it is completely okay. Okay, thank you. So next slide, sir. So in this slide, it is showing that how environment or how the environmental things interact with each other. So in how environmental interactions take place. So there should be a source, basically. Source means anything which any operations or any activity, equipment or any process which generate the pollutant. So that is the source. For example, leakages, spills, stake emissions, noise, waste disposal, wastewater discharge, and resource consumption. So जब ये सोर्स आते हैं तो हाउ दे हैव पाथ टू एंटर इनटू द एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट में बेसिकली अभी हमने ये देखा था कि देयर आर कंपोनेंट्स इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ओके, सो आपका एटमॉस्फेयर है एयर, हाइड्रोस्फीयर है वाटर और लिथोस्फीयर है सॉइल. सो जब ये जो सोर्स होते हैं, सोर्स से पाथवे, दैट इज एयर एंड वाटर एंड सॉइल आर द बेसिकली द पाथवे. उस पाथ में ये पॉल्यूटेंट्स मर्ज हो जाते हैं एंड दे विल बी अवेलेबल ऑलवेज देयर, दे विल बी देयर इन द एनवायरनमेंट. देन रिसेप्टर्स. सो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग जब एयर को वी टेक एयर, वी यूज वाटर and then soil for our crop growing and agriculture requirement. So in सबके through this all pollutants mix and come into our body or come or enter into our food cycle and enter into the our things. Then these like for receptors. So source, pathway and receptors. So receptors में आते the element of the environment that is impacted, which is humans, surface, groundwater, land, flora and fauna and natural resources. So flora and fauna, animal and plants भी pollutant से affected होते हैं. So when environment interaction take place, there should be a source, there should be a pathway, and there would be a ultimate receptor which will get harmed by these pollutions. Okay, so जैसे हमने देखा कि वाटर, एयर एंड एनवायरनमेंट आर बेसिकली द इन्वायरमेंटल पाथवेज विच कैरीज दिस पॉल्यूटेंट्स इनटू द आवर इकोसिस्टम. सो वाटर इन्वायरमेंट में क्या बेसिक कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स विच कंटामिनेट द वाटर. सो वी कैटेगराइज इन पैरामीटर्स लाइक सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑयल एंड ग्रीस, dissolved solids, pathogens, nutrients, heavy metals, biodegradable organics and dissolved organics. So these are the basic things which actually we measure into to identify the pollution level, or these are the major things which get into the our environment and cause the harm to us or flora or fauna. And for gases, so earlier we have seen the water environment things, now the air environment things. So what are the gases actually causing the pollutions? So these are the carbon monoxides, carbon dioxides, oxides of sulfur, oxides of nitrogen, photochemical oxidants, ozone depleting substances.
So there are various activities which is showing in this. Sir, move to next slide, sir. Next. Yeah, so this is the water environment. So next. Yeah, so this is the air environment basically which we are discussing. So in this picture, a blue picture, you can see that there are various sources which generate the air pollutions. Like first is motor vehicle pollution, which contribute around 50% of this pollution, air pollution, which we don't exactly think that air pollution is caused mainly or majorly by the motor vehicles. And there is a utilities, which is the power plants, then industrial and commercial residents. So industrial and commercial residents, basically there are a lot of places which uses the diesel generators to get the power or to operate the system wherever the electricity is not there or they don't have any proper source of electricity. Then other sources are also there, which are the minor industries or other complexes which generate the air pollution. So air pollutants also can be divided into the two parts. First is the fixed sources, second is the linear sources, statutory or linear sources. So motor vehicles are basically known as the linear sources of air pollution, and above all these three are the fixed sources of emission, because stakes and other emission would be stationary, but motor vehicles are moving things. So that is known as a linear pollutant, and this is the one of the major contributor to polluting the environment. So आपने दिल्ली का सुना होगा, हर साल ऑड एंड इवन फॉर्मूला आता है, हर साल कुछ नए नए मेजर्स आते हैं टू कंट्रोल दिस पॉल्यूशन, बिकॉज motor vehicles and other this linear sources of pollutants are mainly the basic major source of pollution, air pollution. So move to next, sir. So now I think it is clear basic things about the environment and the source, path and receptors. So any question? Sir, can you explain that previous slide about water pollution? Okay. Okay, this common contaminants of water environment, that is the thing. So this is. So common contaminants in water environment. Basically water environment जो होता है, water में जो pollutants होते हैं, उनको basically हम categorize करते हैं suspended solids. Okay. Oil and grease, dissolved solids, pathogens, nutrients, heavy metal, Sir? biotic. How nutrient affect our environment? हाँ, देखिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बेसिकली, अगर आपने कोई तालाब विजिट किया हो या फिर कोई ऐसी रिवर विजिट की हो जिसमें कि बहुत ज्यादा वेजिटेशन की ग्रोथ है, या फिर आपने कुछ सुना होगा जलकुंभी के बारे में. Yes, sir. हाँ, तो ये जो जलकुंभी है या फिर जो अदर वेजिटेशंस जो रिवर में या किसी पोंड में ग्रोथ, जिसकी एक्सेप्शनल ग्रोथ हो जाती है, उसका रीजन ये होता है कि उस वाटर में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा हैं. न्यूट्रिएंट्स जैसे खेती में हम लोग फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है बेसिकली. सो ये न्यूट्रिएंट्स जब वाटर में कैरी करते हैं, जैसे अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ले लें, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि अगर आपका वाटर प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन कैरी ओवर हो जाते हैं, या अदर न्यूट्रिएंट जो उसमें से अगर हम प्रॉपरली अलग नहीं कर पाते हैं तो वो रिवर्स में मिल जाते हैं. वहां पे ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहां पे अल्गल ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं. तो जब अल्गल ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगती है तो उसके कारण जो वाटर में जो ऑक्सीजन है वो डेफिशिएट हो जाती है, क्योंकि वो सारे जो वेजिटेशन होती है वो उनको एब्जॉर्ब करने लगती है, और उसके कारण वहां पे बहुत सारी वेजिटेबल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली वो जो वाटर सोर्स होता है वो एक दलदल में या एक ऐसी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें कि आपका फ्रेश वाटर उतना नहीं रहता है. सो बेसिकली तो बेसिकली देखिए अभी जो इसके अलावा मैं जो आपको जैसे ये डिजोल्व सॉलिड्स है,
तो हमारे जो बाड़मेर रीजन में बेसिकली आपको जो खारा पानी लगता है, या अलूनी रिवर को बोलते हैं कि ये खारी रिवर है, तो उसका कारण ये होता है कि वहां का जो पानी है उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है। तो सॉल्ट बहुत ज्यादा होने से अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें हम देखेंगे सॉल्ट का जो लेवल होता है वो 3000 4000 5000 मिलीग्राम पर लीटर है। तो वो जो सॉल्ट है उसके अंदर जो मिक्स है उसको हम डिजोल्व सॉलिड्स बोलते हैं। तो डिजोल्व सॉलिड या सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है तब भी हम उसको यूज नहीं कर सकते, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो ठीक नहीं होता है, खेती के लिए ठीक नहीं होता है। प्लांट्स बहुत ज्यादा सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। ओके। सो वैसे ही हैवी मेटल्स हैं जिसमें मरकरी है, लेड है, जिंक है, निकल है, कॉपर है, क्रोमियम है। ये सारी हैवी मेटल्स होती है जो भी हमारी बॉडी में एक रिक्वायरमेंट तक तो जरूरी है, लेकिन अगर वो ज्यादा आती है तो फिर हम लोगों को वो इम्पैक्ट करती है। ओके। Okay, sir. Yeah. So, sir, move to slide 9. स्लाइड 9 सर, प्रीवियस। हाँ। सो देखिए, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कैसे हार्मफुल होते हैं या वो कैसे पॉल्यूशन करते हैं। सो पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है कि पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस in the environment of any solid, liquid or gaseous substance in a concentration that may be or tend to be injurious to the environment. इसका मतलब ये है बेसिकली कि हर एक पर्सन की, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक पर्सन की या हर एक किसी भी चीज की एक कैपेसिटी होती है। तो उस कैपेसिटी से अगर कोई भी सॉलिड, लिक्विड या कोई गैसियस सब्सटेंसेस उस कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, ओके, उस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाता है जो कि हम लोगों को हार्म कर सकता है या फिर इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है, उसको पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, जब हम गाना सुनते हैं तो कम आवाज में हम गाना सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें अगर उसका नॉइज, उसका जो लेवल है, नॉइस लेवल, उसको हम बढ़ा दें, बहुत तेज आवाज में गाना सुने तो वो एक टाइम पे आपका सर दर्द करने लग जाएगा उससे, आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो हमारी एक कैपेसिटी है कि हम एक लेवल तक जिस चीज को सुन रहे हैं तो वो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन उस कैपेसिटी से ऊपर चला जा रहा है तो वो हम लोगों को तकलीफ दे रहा है। सो वही पॉल्यूशन है बेसिकली किसी भी चीज का। किसी भी एग्जाम्पल को आप ले लीजिए, कोई भी चीज होगी या कोई भी ऐसा चीज होगा जो कि पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा होगा, देन इट विल कॉज ए पॉल्यूशन। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए बाड़मेर में ही हम ले लें तो वहां पे डेली थाउजेंड्स व्हीकल चलते होंगे, लेकिन वहां पे हमको उतना पॉल्यूशन महसूस नहीं होता है। लेकिन वहीं दिल्ली में ले लीजिए जहाँ पे लाखों व्हीकल्स चलते हैं, तो वहां के एटमॉस्फेयर में वो व्हीकल्स का जो इमिशन होता है वो डिस्पर्स नहीं हो पाता है प्रॉपरली, और वो डिस्पर्स नहीं होता है उसके कारण से वहां पे वो एज ए पॉल्यूटेंट एक्ट करने लग जाता है। तो पॉल्यूटेंट वो बाड़मेर में भी है बट वो डिस्पर्स हो जाता है, तो वो हमको इतना हानि नहीं करता है। लेकिन दिल्ली या अदर जो एरियाज है जहां पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, वो डिस्पर्स नहीं हो पाता है, इसलिए वो एज ए पॉल्यूटेंट करता है और वहां पे लोगों को हार्म करता है। सो तो ये पॉल्यूशन बेसिकली कैसे इंपैक्ट करता है? सो ये इंपैक्ट करेगा डिग्रेडेशन, लाइक हमारे एयर, वाटर और सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, लाइक हमने जो अभी न्यूट्रिएंट वाला एग्जांपल देखा कि वाटर बॉडी खत्म हो जाती है बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होने से, तो वो वाटर बॉडी हमारे लिए डिप्लीट हो गई, एंड वाटर इज अ रिसोर्स। ओके। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सो इन पॉल्यूशन के कारण में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं या बहुत सारे छोटे जीव होते हैं जो कि सस्टेन नहीं कर पाते या वो जी नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने हाउस स्पैरो का एग्जांपल सुना होगा कि सिटीज में नाउ हाउस स्पैरो इज नॉट देयर, इज नॉट विजिबल इन द सिटीज, बिकॉज वहां पे जो पॉल्यूशन हुआ, बिकॉज हाउस स्पैरो बेसिकली कैसे एक्सटिंक्ट हुई, बिकॉज ऑफ द यूजेस ऑफ डीडीटी। और आपने एक और एग्जांपल सुना होगा कि अब आपको वल्चर्स या गिद्ध है वो जो बाड़मेर और जोधपुर में पहले बहुत हुआ करते थे, अब वो बहुत कम दिखाई देते हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन।
सो वल्चर्स का कोई जानता है, कोई स्टोरी बता सकता है वल्चर्स के बारे में कि हाउ दे एक्सटिंक्ट और हाउ दे आर रिड्यूसिंग इन द नंबर्स? कोई है जोधपुर से या सर बेसिकली जितना पता है उस हिसाब से एक डाइक्लोफेनेक सोल्ट है जो वो उनके लिवर को हार्म कर रहा है, तो लिवर फेलियर के कारण वल्चर्स की डेथ हो रही है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बहुत सही है आपकी जानकारी। इसमें एक्चुअली डाइक्लोफिनेक जो एक मेडिसिन होती है बेसिकली, वो यूज की जाती है आपके एनिमल्स में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो जो गाय भैंस होती है उनको डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि वो ज्यादा दूध दे सके। ठीक है। बट ये जब इनकी जो बॉडीज होती हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है तो वो उसको इंजेक्शन दिया है तो वो जो डाइक्लोफिनेक है वो उनकी बॉडी में जमा होता जा रहा है। अब जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनको ऐसे कॉमनली फेंक दिया जाता है, या उनको एक जगह पे गांव में जहाँ भी जब फिक्स जगह होगी या एरिया होगा वहां पे उनको रख दिया जाता है। तो जो वल्चर्स होते हैं बेसिकली उनका फूड यही होता था पहले। उनको सिटीज का एक्सकेवे क्लीनर कहा जाता था। ओके। तो इनकी जो बॉडीज को जब वल्चर्स खाते हैं तो उनकी बॉडी में वो आपका डाइक्लोफिनेक चला गया। तो यहाँ पे देखिए सोर्स रिसेप्टर पाथवे फिर से आ गया। सोर्स क्या है? डाइक्लोफिनेक हो गया। रिसेप्टर उसका जो है जो उसका पाथवे है वो एनिमल्स की बॉडी हो गई, और उसका रिसेप्टर जो है वो वल्चर हो गया। तो जब वो डाइक्लोफिनेक से कॉन्सेंट्रेटेड मीट को जब वल्चर्स खाते हैं तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। उसके कारण से फर्टिलिटी कम होने के कारण क्या होगा कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पा रही है, या नेक्स्ट जो है उनके जो बच्चे होने चाहिए थे, जो उनकी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही है। तो उसके कारण वहां पे आपका ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है बेसिकली। सो बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। सो देखिए नीचे एक और बहुत अच्छी लाइन लिखी है इस पीपीटी में, पॉल्यूशन इज ए रिसोर्स एट ए रॉन्ग प्लेस एट रॉन्ग टाइम। ओके। पॉल्यूशन एक्चुअली एक रिसोर्स है बेसिकली। पॉल्यूशन इज नॉट ए, ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन आपके लिए हार्मफुल ही होगा, लेकिन पॉल्यूशन कब होगा? जब कोई भी चीज गलत जगह पे गलत समय पे होगी तब उसका पॉल्यूशन होगा। अदरवाइज हर एक कंपोनेंट या हर एक एलिमेंट होता है वो एक सर्टन रिक्वायरमेंट एक लेवल में हमारी बॉडी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है। जैसे एयर पॉल्यूशन में हमने एक एग्जांपल देखा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगी तो हम लोगों का इस अर्थ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। सो ग्रीन हाउस गैस किसी ने देखा है, समझा है? हेलो। यस सर। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में कोई बता सकते हैं क्या होता है ग्रीन हाउस गैस? क्या ग्रीन हाउस इम्पैक्ट क्या होता है बेसिकली, ग्रीन हाउस इम्पैक्ट और ग्रीन हाउस फिनोमिना? सॉरी सर, ये तो नहीं पता इतना। अच्छा देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस होती हैं जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मेथेन। ये कुछ गैसेस होती है जो कि जो सूर्य की जो ऊर्जा आती है, जो हीट आती है उसको एब्जॉर्ब करती है और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। ठीक है। अभी अगर हमारे एटमॉस्फेयर में जो एम्बिएंट टेम्परेचर है जो 25 डिग्री, 27 डिग्री, 30 डिग्री है, उस टेम्परेचर पे ही हम सस्टेन कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तब भी हम लोग उसको आसानी से रह नहीं सकते, और वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी हम रह नहीं सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखने में बहुत ही हेल्पफुल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से गायब हो जाएगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर कई गुना माइनस में चला जाएगा और हम इस अर्थ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा एटमॉस्फेयर में जरूरी है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो गई तो ये पॉल्यूशन है। ठीक है। सर नेक्स्ट स्लाइड।
सो अगेन हम लोग फिर से आते हैं एक बार वाटर पॉल्यूशन पे, ठीक है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो अब इसमें देखिए पॉल्यूटेंट्स को भी हम कई अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स जो हमने अभी पहले स्लाइड में हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे, ठीक है, उन पैरामीटर्स को फर्दर उन्होंने हमने उसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर दिया। तो जैसे फिजिकल पॉल्यूशन, सो फिजिकल पैरामीटर्स आर बेसिकली टेम्परेचर, टर्बिडिटी, सस्पेंडेड सॉलिड्स, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर। And further, if we see that chemical pollutants are basically inorganic and organic chemicals, which includes the acids, alkalis, soluble salts, insoluble materials, etc. And the biological pollutants are basically the pathogenic forms of bacteria. So these are the three type of pollutants. Now, sir, click करेंगे next. सो अब आप बताइए कि सोर्स क्या होंगे फिर इन पॉल्यूटेंट्स के। फिर से आप एक जस्ट बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या सोर्सेज हो सकते हैं। सर डोमेस्टिक हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल, और बिल्कुल, हाँ। तो म्युनिसिपैलिटी बेसिकली का जो है वो भी। हाँ, तो जो म्यूनिसिपालिटी का जो है वो भी डोमेस्टिक में ही आता है। तो जो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है वो बेसिकली दो तरह के हो गए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल। सो डोमेस्टिक में सर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। सो डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट्स है डिस्चार्ज ऑफ सीवेज एंड ह्यूमन वेस्ट। ओके, सो ये जितना भी हम लोगों के हाउस होल्ड से या जो म्यूनिसिपल एरिया से जो जनरेट होता है वो सारा डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट्स है। एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। सो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स क्या है कि रिलीज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड वेस्ट वाटर। तो इंडस्ट्रीज में जो भी वाटर जनरेट होता है, जो भी प्रोसेस से निकलता है या फिर किसी भी एक्टिविटी से जनरेट होता है, तो अगर उसको अनट्रीटेड कंडीशन में या फिर इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद अगर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं तो दैट दे विल कॉज दी पॉल्यूशंस। नेक्स्ट सर। और एक और है सोर्स जिसमें कि एग्रीकल्चर पॉल्यूशन है, ठीक है। एग्रीकल्चर पॉल्यूशन कैसे हुआ, कोई बता सकता है कि एग्रीकल्चर कैसे पॉल्यूशन करती है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं। सर वो जो केमिकल्स डालते हैं ना अपन, हाँ बिल्कुल, वो पानी के साथ घुल के आ जाते हैं फिर बहते बहते। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपने एग्रीकल्चर में हम जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, अब देखिए एक अभी हम एग्जांपल पढ़ रहे थे कि वाटर में न्यूट्रिएंट्स कैसे हार्मफुल हो गए। तो वाटर में न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए, तो जब हमने खेती की या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की उस टाइम में जो हमने फर्टिलाइजर यूज किए, पेस्टिसाइड यूज किए, वो इतनी ज्यादा मात्रा में यूज कर लिए कि वो जब बारिश का पानी उस खेत में से बह के बाहर निकलेगा तो वो किसी रिवर में जाएगा या किसी पॉन्ड में जाएगा। तो वो सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उस पानी के साथ बह के उस वाटर बॉडी में चले गए और वहां पे उसने पॉल्यूशन क्रिएट किया। और वैसे ये जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपके खेत में भी होने से क्या होता है, खेत में भी जब आप इरिगेशन करते हो या जब एक्सेस वाटर जमा होता है तो वो सीप करके ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। तो ग्राउंड वाटर में जाने के बाद में वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अभी एक लास्ट ईयर जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था तो उसमें एक प्लास्टिक पॉल्यूशन की थीम थी, जिसका होस्ट इन्वायरमेंट डे का होस्ट हमने इंडिया में ही था। तो उसमें एक स्टडी देखी थी हमने, तो उसमें हमने देखा कि कई जगहों पर जो ग्राउंड वाटर होता है, जो ग्राउंड वाटर जो होता है, जो बेसिकली हम लोग बोरवेल से या कुओं से लेते हैं, उस वाटर में प्लास्टिक के छोटे छोटे बारीक बारीक एकदम माइन्यूट से पार्टिकल्स आने लगे। क्योंकि वो जो प्लास्टिक थी, वो प्लास्टिक तो डिग्रेड होती नहीं है। प्लास्टिक को अगर आप अर्थ में या जमीन में गाड़ भी दोगे तो वो पूरी तरह से वो डिग्रेड होने में उसको कई वर्ष लगते हैं, मतलब सैकड़ों वर्ष लगते हैं।
तो वो जो प्लास्टिक है वो बारीक 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 छोटे 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 उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक होती जाती है, और वो ब्रेक होने के बाद में वो ग्राउंड वाटर से मिल रही है, और वही ग्राउंड वाटर वापस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वो एक डोमेस्टिक पोल्यूशन का एग्जांपल है वैसे। तो अब इसमें जैसे इरिगेशन सिस्टम से पॉल्यूशन कैसे हो रहा है कि एक्सेस इरिगेशन हो रहा है। हम इरिगेशन उतना नहीं कर रहे हैं जितना कि रिक्वायरमेंट है, तो हमारा रिसोर्स लॉस हो रहा है, फ्रेश वाटर लॉस हो रहा है। तो उसको हम एज ए एग्जांपल ले सकते हैं कि इरिगेशन सिस्टम के थ्रू आपका जो एग्रीकल्चर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट सर। So similarly, air pollution. Next, sir. So air pollution में भी जो सोर्सेज हैं, तो इसमें आप बताइए इसमें भी किस तरह के पॉल्यूशन होंगे। जैसे अभी हमने वाटर में पढ़ा था डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल। सो एयर पोल्यूशन की क्या सोर्स हो सकते हैं? घर के बाहर तो हमने पॉल्यूशन देखा है, लेकिन घर के अंदर भी हमने कभी पॉल्यूशन महसूस किया है? यस सर, वो जो गांव में चूल्हे वगैरह जलते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल। सो नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्लिक करेंगे सर। हाँ, तो देखिए जो एक पॉल्यूशन की भी, एयर पॉल्यूशन में भी दो टर्म्स होती है, इंडोर पॉल्यूशन और आउटडोर पॉल्यूशन। सो इंडोर पॉल्यूशन में आपके जो इमिशंस है, एक तो घर में जो हम लोग चूल्हे जलाते हैं जिसमें प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाता है, एक तो वो सोर्स हो गया। ओके, और दूसरा सोर्स होता है जैसे कि हम लोग घर में पेंट करवाते हैं या घर में ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे कि किसी ना किसी तरह का इमिशन हो रहा है। पेंट्स में बेसिकली क्या होता है, किसी को आइडिया है पेंट्स में क्या होता है जो पॉल्यूटेंट है? Yes, Yogesh, you can ask question. Okay, sir, continue. ओके, सो हाँ, एक मेरे जस्ट अभी मैसेज में देखा कि ग्रीन हाउस गैस अफेक्ट ओवर ओजोन लेयर, जो जीवराज का क्वेश्चन है। तो जीवराज, इसमें ओजोन लेयर का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और ग्रीन हाउस गैस का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओजोन लेयर बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है जो यूवी या अल्ट्रावायलेट रेस को हमारे अर्थ तक पहुंचने में रोकती है पहुंचने से, जिससे कि हमें उन अल्ट्रावायलेट रेस का जो हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, जो जो अल्ट्रावायलेट रेस बेसिकली कैंसर कॉज कर सकती है या अदर जो कुछ बीमारियां कर सकती है, तो वो उसको उससे हमें बचाता है। जबकि ग्रीन हाउस गैसेस होती है जो कि एक लेयर के रूप में अर्थ में है, और अर्थ जब जैसे सन रेज जब अर्थ पे आती है तो अर्थ को गर्म करती है। तो अर्थ से फिर से कुछ जो गर्म होने के बाद जब भी कोई जैसे आपने कभी तवा देखा होगा या उसको महसूस किया होगा, तो तवे पे जब आप हाथ रखते हैं तो आपको वो गर्म लगने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि वो हीट लेके उसमें से भी वो एनर्जी या वेव्स को डिसेमिनेट कर रहा है, वो फैल रही है, मतलब उसमें से वापस वो बाहर आ रही है वेव्स। तो वैसे ही हमारी अर्थ भी गर्म होती है सूर्य की किरणों से, और जब उस ऊर्जा को वापस बाहर भेजती है, ठंडी होती है, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, मीथेन है, वो उन वेव्स को फिर से रोक लेती है ताकि वो अर्थ से बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाए, और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लेती हैं। हाँ, तो दूसरा जो इनका जीवराज जी का इसमें क्वेश्चन था कि केन ऑयल एंड गैस वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड इट्स वेलफेयर production unit and processing plant, as we all know that hydrocarbon affect too much our environment। तो इसमें जीवराज जी बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन का जो मेन जो पॉल्यूशन होता है वो बेसिकली डाउन स्ट्रीम में ज्यादा होता है, जहां पे रिफाइनरीज होती है वहां पे बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे बाड़मेर में जो केन ऑयल एंड गैस में ऑपरेशंस है, वो ऑपरेशंस ओनली हाइड्रोकार्बन को अर्थ से एक्सट्रैक्ट करना है, उसको फिजिकली सेपरेट करना है और उसको फर्दर इंडस्ट्री को बेच देना है। तो यहाँ पे ओनली फिजिकल सेपरेशन हो रहा है, जिसमें कि
कोई अदर प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। और यहाँ पे पॉल्यूशन का भी कोई इतना बड़ा सोर्स नहीं है, क्योंकि जो पावर प्लांट है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो नेचुरल गैस से होती है। जो भी वाटर होता है वो वाटर सारा फिर से रिसाइकल होता है सिस्टम में, ठीक है। और जितना भी वेस्ट जनरेट होता है वो सारा हम सीमेंट इंडस्ट्री को को प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। तो जितना भी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड मेजर्स होते हैं वो सारे इस प्लांट में हमने कंसिडर किए हुए हैं, जिससे कि मिनिमम और एस एक्सटेंट पॉसिबल मिनिमम पॉल्यूशन कॉज हो। तो सारे कंट्रोल मेजर्स उसमें हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। ओके, तो ठीक है, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सर नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। तो इसमें बेसिकली दो पॉल्यूशन हुए, इंडोर एयर पॉल्यूशन और आउटडोर एयर पॉल्यूशन। आउटडोर एयर पॉल्यूशन में डीजल जनरेटर्स, कैप्टिव पावर प्लांट्स, इक्विपमेंट, व्हीकलर एमिशंस, जो डस्ट जनरेट होती है व्हीकल मूवमेंट के कारण, वो तो ये सारे जो पॉल्यूशन है वो आउटडोर पॉल्यूशन में आते हैं। और जो फ्यूल्स हैं, जो घर में फ्यूल यूज करते हैं या फिर घर में और उस किसी तरह की कोई बर्निंग होती है उससे जो धुआं निकलता है, या फिर पेंट्स होते हैं, जिससे कि बेसिकली पेंट में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, जो कि एक जैसे आप नया नया जब घर पेंट होता है आप एंटर करोगे तो एक अजीब सी स्मेल आपको महसूस होती है। तो उसमें जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं वो बेसिकली रिलीज होते हैं और उसी की स्मेल होती है वो, तो वो इंडोर एयर पॉल्यूशन में आते हैं। वैसे ही इसमें भी टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स होते हैं। सर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में दो तरह के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली डिस्चार्ज होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। उसमें नेक्स्ट सर। तो दूसरा जो सोर्स होता है वो सेकेंडरी सोर्स कहलाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाता है, जो कि जब हम कोई भी पॉल्यूटेंट जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर्स, एंड उनके बीच में जो रिएक्शंस होती है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती है, उससे जो पॉल्यूटेंट जनरेट होते हैं उनको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो बेसिकली प्राइमरी pollutants are the pollutant which is getting discharged directly into the atmosphere, and secondary pollutants which are formed with by the reaction in between the primary pollutants. So for example के लिए जैसे इसमें दिया है कि formation of sulfuric acid from sulfur oxide leading to acid rain। तो जो व्हीकलर इमिशन में जो सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं या इंडस्ट्रियल इमिशन में जो सल्फर ऑक्साइड्स निकलती हैं वो एटमॉस्फेयर में जाके रिएक्शन करती हैं, देन दे क्रिएट अ सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो जो सल्फ्यूरिक एसिड जो एटमॉस्फेयर में बन रहा है वो बारिश के साथ में या जब भी रेनफॉल होता है उसके साथ में वो अर्थ पे आ जाता है और वो एसिड रेन के रूप में होता है। तो वो एसिड रेन जब होती है दे कॉज दी डेजर्टिफिकेशन बेसिकली, मतलब कि वहाँ की जो वेजिटेशन है या फ्लोरा फोना है वो उसके कारण जल सकता है, उससे उसको हार्म होगा और वो आपका अर्थ जो है नॉन फर्टाइल अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द बेसिकली द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट सर। सिमिलरली लैंड पॉल्यूशन क्या है? सो नेक्स्ट सर। सो लैंड पॉल्यूशन में क्या होता है बेसिकली, उसमें भी दो तरह के सोर्स होते हैं, टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं, जैसे कि हैजार्डस वेस्ट और नॉन हैजार्डस वेस्ट। तो ये दो तरह की वेस्ट होते हैं जो मेनली हमारा लैंड पॉल्यूशन करते हैं। तो हैजार्डस वेस्ट क्या होता है? हैजार्डस वेस्ट को याद रखने के लिए एक छोटी सी टर्म यहाँ पे बनाई हुई है, राइज इट। राइज इट मतलब राइज के आर से रिएक्टिव, इनफ्लेमेबल, कॉरोसिव, एक्सप्लोसिव, इन्फेक्शियस एंड टॉक्सिक। सो अगर कोई वेस्ट है जिसमें रिएक्टिव, इन्फ्लेमेबल, फ्लेमेबिलिटी होगी, कॉरोसिवनेस होगी, एक्सप्लोसिव नेचर होगा, इन्फेक्शियस होगा या टॉक्सिक होगा, सो ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर्टिकुलर वेस्ट में, सो देन दे विल क्वालिफाई फॉर हैजार्डस वेस्ट। और नॉन हैजार्डस वेस्ट जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो नॉर्मली घरों से या हमारी जनरल एक्टिविटीज से जो जनरेट होता है, पेपर, प्लास्टिक्स,
सो वो सारा जो वेस्ट होता है वो नॉन हजार्डस वेस्ट में आता है। नेक्स्ट सर। ओके, तो अभी देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में भी ये चीज डिस्कस की थी, अभी हमने टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स भी देखे, तो उसके बाद में फिर से आप लोग जस्ट एक बार उसको गो थ्रू कीजिए कि रिवाइज कर लीजिए बेसिकली कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और सोर्स पाथ और रिसेप्टर सिस्टम क्या होता है जिससे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जनरेट होते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन हो अभी तक तो बता सकते हैं। ठीक है, नो सर। ओके, थैंक यू। सो अभी हमने जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट की, ओके, अबाउट द पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, तो ये पॉल्यूशन होने के बाद में इनका जो हार्मफुल इम्पैक्ट क्या होता है, कि इश्यूज क्या हैं जो पॉल्यूशन के कारण जनरेट हो रहे हैं। तो एयर पॉल्यूशन के कारण जो इश्यूज हैं वो हैं, एयर पॉल्यूशन बेसिकली देखिए अभी इसमें और कुछ कारण इसमें हमने दिखाया, जैसे नेचुरल सोर्स भी हैं पॉल्यूशन के। नेचुरल सोर्स वो पॉल्यूशन इज डस्ट स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स, ग्रास फायर्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये सारे जो एक्टिविटीज हैं इनसे भी पॉल्यूटेंट जनरेट होते हैं और वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होते हैं। मेन मेड सोर्सेज में व्हीकलर, इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक एक्टिविटीज हैं। एक्सपोजर कॉजेस लंग डिसीज इवन डेथ। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनके एक्सपोजर्स जो होते हैं बेसिकली वो लंग डिसीज मेनली करते हैं एयर पोल्यूशन में, और वो उसके कारण कई जगह डेथ या अदर इश्यूज भी हो सकते हैं। सिमिलरली नॉइज पॉल्यूशन, जैसे हमने एग्जांपल देखा था, अनवांटेड साउंड दैट कॉजेज द डिस्टर्बेंस टू द ईयर। तो नॉइज पॉल्यूशन के इम्पैक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से, हम लोग को स्ट्रेस फील होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, स्लीप जो होती है, हम लोग नींद जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। सो नेक्स्ट सर। ओके, तो सिमिलरली वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन में भी जो अभी हमने देखा था कि वाटर पॉल्यूशन के कारण, जैसे अभी एक इसमें पिक्चर आप देखिए जिसमें नीचे बहुत सारा वेस्ट जनरेट हुआ है, मतलब ये वाटर जो बॉडीज हैं वो बेसिकली पॉल्यूट हो गई हैं, तो वहाँ पे यूट्रोफिकेशन सिस्टम भी, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वेस्ट भी हैं, ये वाटर बॉडीज खराब हो गई हैं, सो इट इज कॉजिंग दी वाटर पॉल्यूशन। सो अभी एक जस्ट जनरल क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाउ मच फ्रेश वाटर इफ is available for human consumption। ओके, तो ये जस्ट एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सो इफ नहीं है, इज है। सो हाउ मच फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एनी आइडिया? सर 1%। 2%। 2.5%। नहीं, 2.5% नहीं है ये। आपका जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो, अगर एक आप ऐसे जस्ट समझोगे कि ये घड़ा है, घड़े में से एक छोटी सी चाय पत्ती की जो चम्मच होती है उतना चम्मच भर के पानी ही अवेलेबल है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट इन 0.002%। तो जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो बहुत ही कम है, इट्स इन डेसिमल्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई और मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर? ये भी हमने ऊपर अभी देखा था। हमने वाटर पॉल्यूशन जो स्टार्टिंग में जो स्लाइड थी ना, 4th या 5th नंबर की स्लाइड हो गई आई थिंक, उसमें वाटर एनवायरनमेंट जो पढ़ रहे थे हम, जहाँ पे हमने न्यूट्रिएंट के बारे में क्वेश्चन किया था। तो वो सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स है, पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को मेजर करते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि वाटर हमारा कितना पॉल्यूटेड है। ठीक है, नेक्स्ट सर। वैसे ही देखिए, वेस्ट वेस्ट डिस्पोजल आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आप भी कहीं जगह जब बाहर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि अलग अलग जगह पे वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको कोई कलेक्ट नहीं कर रहा है, गार्बेज पड़ा हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे तो आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट भी दिखेगा। सो वेस्ट भी बेसिकली क्या होता है,
कि any material which is a byproduct of that can no longer be used for intended purpose and requires to be discarded. तो कोई भी मटेरियल ऐसा है जिसका कि अब आगे फर्दर हम यूज नहीं कर सकते हैं या उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे, उसको अभी हमें फेंकना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, तो वो वेस्ट कहलाता है। हालांकि वेस्ट भी, उसको भी आप देखिए बहुत अच्छी लाइन एक नीचे है, वेस्ट इज अ रिसोर्स एट द रोंग प्लेस एट द रोंग टाइम। तो वेस्ट में भी आप देखिए, अगर वेस्ट को जितना हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, सेग्रीगेशन के बाद में प्लास्टिक हम रिसाइकल कर सकते हैं, पेपर हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो अदर फूड मटेरियल्स हैं या जो वेट वेस्ट है जिसमें ड्राई लीव्स हैं, खाना है, वो वेस्ट को हम फिर से कंपोस्ट बना के यूज कर सकते हैं। सो वेस्ट एक रिसोर्स भी है अगर हम उसको सही जगह पे और सही समय पे उसको यूज कर लेते हैं या उसको प्रॉपर सेग्रीगेशन करके उसको फिर से हम काम में ले सकते हैं। तो अब आप बताइए आपके हिसाब से कि आप आपकी डेली लाइफ में कौन कौन से तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं, आप किस तरह का वेस्ट डेली महसूस करते हैं, कोई बताएंगे एग्जांपल्स? सुबह से सिंगल लेके यूज शाम से। प्लास्टिक मोस्टली। हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक एक तरह का वेस्ट हुआ, बिल्कुल सही। सिंगल यूज प्लास्टिक तो एक बहुत बड़ा वेस्ट का इशू है, बहुत ही बड़ा कंसर्न है एक्चुअली अभी की डेट में, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि वो एक बार हमने यूज किया, उसको फेंक दिया, उसके बाद में उसका फर्दर कोई आगे स्पेसिफिक यूज हो नहीं पाता है और वो अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में जाता है या नदियों के रास्ते से बहते हुए समुद्र में जाता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ। हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आता है ये भी। जब ये मोबाइल हमारा काम का नहीं रहेगा, टीवी, फ्रिज, ये सब जब हमारे काम के नहीं रहेंगे तो ये एज ए वेस्ट हो जाएंगे। तो ये जो वेस्ट होता है ये भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, और ये भी बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें भी कई तरह की मेटल्स और केमिकल्स की चीजें यूज होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहां भी वेस्ट जनरेट होता है जिसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। गार्बेज या नॉन हजार्डस वेस्ट में जो पेपर है, प्लास्टिक है आपका, ये हो गए, रबर है, ग्लास है, वुड है। आपका डेली का आप जब घर में देखते होंगे कि सब्जी बनाते हैं तो उसका जो वेस्ट निकलता है, ठीक है, वो वेट वेस्ट आता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसको बोलते हैं हम। ड्राई लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो सारा जो वेस्ट है। सो ये सारे जो वेस्ट हैं ये टाइप ऑफ वेस्ट हैं, बेसिकली अलग अलग तरह के वेस्ट हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। सर नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो अभी देखिए इसमें फिर से एक बार आपको जनरल आइडिया के लिए फिर से रिपीट कर रहे हैं कि नॉन हजार्डस वेस्ट आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सब नॉन हजार्डस वेस्ट हैं। हजार्डस वेस्ट में जो आते हैं बेसिकली वो वेस्ट हैं जो जिसमें कि रिएक्टिव हो, टॉक्सिक हो, फ्लेमेबल हो, एक्सप्लोजिव या कोरोसिव नेचर के हो वो, और जो डेंजर होता है हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए, उसको हम हजार्डस वेस्ट बोलते हैं। और इन्फेक्शियस वेस्ट में बायोमेडिकल वेस्ट आता है, जैसे कि जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल है वहां से जो निडल जनरेट होती है, सिरिंज जनरेट होती है, बैंडेजेस है, ब्लड जनरेट होता है मेडिकल सेंटर से, या फिर जो आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो सारे जो होते हैं वो इन्फेक्शियस या बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट सर। हाँ, अब जो है कि वल्चर का जो एग्जांपल देखा था या स्पैरो का, होम स्पैरो का जो एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी एक बड़ा इशू है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसलिए इशू है बिकॉज क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होती हैं, ओके। अब जैसे इकोसिस्टम का जो आपने एक सिस्टम पढ़ा होगी, फॉर एग्जाम्पल जैसे गेहूं है, गेहूं में पहले क्या होता था, बहुत सारी डिसीज होती थी जिसके कारण कि गेहूं की फसलें खराब हो जाती थी। तो उसकी जंगली वेराइटी गेहूं की जो ढूंढी वैज्ञानिकों ने, और उसके बाद में एक उन्होंने हाइब्रिड गेहूं बनाया जो कि उस डिसीज के लिए
बहुत ही ज्यादा रेजिस्टिव था, तो वो डिसीजेस उसमें गेहूं में नहीं होती थी और उसके कारण फसल अच्छी हो गई। तो अब अगर मान लो वो गेहूं की वो वाली जो वाइल्ड प्रजाति थी वो अगर हमें नहीं मिलती या वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो वैसे ही है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज देयर इन द एटमोसफियर और हेल्प अस टू मेंटेन द इकोसिस्टम। तो अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा तो देयर वुड बी ए इशू एंड इकोसिस्टम विल नॉट सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ सर्टेन की स्पीसीज। तो हर जगह की कुछ स्पीसीज होती है, जैसे अगर हम थार डेजर्ट में बात करें तो यहाँ पे खेजड़ी एक बहुत ही की स्पीसीज है। अगर खेजड़ी का पेड़ अगर सब जगह से गायब हो जाएगा देन व्हाट वुड बी द इशू। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे, तो उसी तरह से हर एक एनिमल्स होते हैं, जैसे वल्चर्स थे, तो वल्चर्स बेसिकली सिटीज के एस्केवेंजर के नाम से उनको जाना जाता था, मतलब शहरों की सफाई कर्मी है वो, क्योंकि जो एनिमल्स की बॉडी होती थी वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, उनसे पैथोजेंस होते हैं, उनकी जो जब वो सड़ता है तो उसकी दुर्गंध फैलती है, गंदगी फैलती है, तो वो उस चीज को नेचुरली क्लियर कर लेते हैं। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ ऑल दिस ecosystem related things which help to maintain ecosystem. Okay, next sir. सो वैसे ही बायोडाइवर्सिटी के बाद में जो अगला जो है रिसोर्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तो वही चीजें हैं बेसिकली कि अगर हम वाटर बहुत ज्यादा यूज करेंगे, लैंड का इम्प्रॉपर इनजस्टिस यूज करेंगे, फॉरेस्ट हमारे कम हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स का अगर हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स बहुत लिमिटेड है, जैसे हाइड्रोकार्बन है ये भी लिमिटेड है, बाड़मेर में भी जो रिजर्व है वो एक लिमिटेड रिजर्व है, बिकॉज फॉसिल फ्यूल एक दिन में नहीं बनता है, ये करोड़ों वर्ष का एक प्रोसेस होता है जिसके कारण हाइड्रोकार्बन पैदा बनते हैं। तो ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर एक रिजर्वायर है अगर वो खत्म हो गया, उतना हमने निकाल लिया तो उसके बाद में वहां पे कुछ नहीं बचेगा। और वैसे ही बायोडाइवर्सिटी भी एक रिसोर्स है जिसका हम की जुडिशियस यूज नहीं करेंगे तो वो भी अल्टीमेटली हम लोगों के लिए इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट करेगा। सो नेक्स्ट सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट में जो है देखिए ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो अभी हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के जो रिसेंट इश्यूज चल रहे हैं उसको लेकर ये आता है। तो इसके जो इम्पैक्ट हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं अब एक लिमिटेड अमाउंट है उसका, तब तो वो अर्थ को गर्म रखने में हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर वो अमाउंट बढ़ गया, बहुत ज्यादा वो केसेस हो गई जो कि आपके जो रेडिएशन है उसको बहुत ज्यादा रोकने लग गई, क्योंकि अभी जो होता है वो कुछ पास हो जाती है कुछ रुक जाती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा वो गैसेस हो जाएंगी तो वो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके कारण जो प्रॉब्लम होगी कि वेदर पैटर्न चेंज हो जाएंगे, लाइक आपका जो मानसून है वो कभी भी आ जाएगा, आपके जो समर सीजन है वो कभी भी आ जाएगा, आपका जो एग्जैक्टली जो 3 3 4 4 महीने की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो कभी भी आंधी तूफान आने लगेंगे, कभी भी बारिश हो जाएगी, तो उसके कारण हमारा फूड प्रोडक्शन पे इम्पेक्ट हो जाएगा। जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगे तो उसके कारण जो कोस्टल एरियाज है उनमें फ्लडिंग हो जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। सो दिस आर द इश्यूज रिलेटेड विद द ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, एंड दिस इज बेसिकली कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। ओके, सो ये ग्रीन हाउस गैसेस आप एक बार अपने जब भी आप थोड़ा सा आपके पास समय रहे तो आप स्टडी कीजिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है और ये कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट सर। तो अभी देखिए अब क्या हो रहा है कि अभी हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इन्वायरमेंट के और पॉल्यूशन के वो अभी हमने जस्ट अंडरस्टैंड किए। अब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट किस तरह से ड्राइव होता है बेसिकली, बिकॉज पहले तो क्या होता था कि इन्वायरमेंट के बारे में उतना लोग ध्यान नहीं देते थे, उतना नहीं समझते थे, लेकिन उसके साथ कई इश्यूज हैं जो
फोर्स करते हैं एक इंडस्ट्री को या हम एक जनरल कम्युनिटी को कि आप अपना इन्वायरमेंट क्यों ठीक रखें, आप कैसे उसको मैनेज करें। तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस हम पे भी लागू होते हैं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज होंगी या जो भी कंपनीज होंगी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपना ध्यान में रखें। इंटरनेशनल ओरिएंटेशन होता है, जैसे कि हम लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, ट्रीटीज साइन की हुई है, जो कि ये कहती है कि आप अपनी कंट्री से पॉल्यूशन करें, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करें। जैसे ओजोन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस के लिए पेरिस एग्रीमेंट है। तो इस तरह की कई ट्रीटीज होती हैं जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी छवि होती है। इंडस्ट्री के लिए भी होता है कि वो कई तरह के सिस्टम से उसको फॉलो करें और अपना रेपुटेशन जो है वो बना के रखें। वैसे ही कस्टमर होते हैं जो एम्प्लॉयज हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, रेगुलेटर्स हैं, ये जो होते हैं ये भी एक रेपुटेशन होती है। जैसे किसी कंपनी के बारे में आपने जैसे कई बार आप देखते होंगे कि बीच में एक ये इशू आया था कि जो टाटा का एड था उसको लेके एक सोशल कैंपेन चल रहा था, तो लोगों ने उसको डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे कई बीच बीच में इश्यूज आते हैं। हेलो। वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे जिस जगह पे हैं वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या वहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो उन लोगों को लोग वो बाइकआउट करना स्टार्ट करते हैं। और वैसे ही फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप इन्वायरमेंट को अच्छे से मैनेज करोगे, जैसे वाटर लॉस कम होगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, रिसाइकल रीयूज होगा, तो आपकी इंडस्ट्री की कॉस्ट कम होगी और आपकी जो परफॉर्मेंस पैरामीटर अच्छे होंगे। आपको गवर्नमेंट में कई तरह की रिपोर्ट्स देनी होती है, वो रिपोर्ट्स आपकी अच्छी सबमिट होंगी। तो उस तरह से ये कई अलग अलग तरह की कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली ये ड्राइव करते हैं कि आपका एनवायरनमेंट को कैसे, आप क्यों आपको इतने एनवायरनमेंट को अच्छे से रखना चाहिए। ओके, तो वैसे ही नेक्स्ट स्लाइड सर। तो वैसे ही जो हमारा एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हमारी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है उसको हम ENP इंडस्ट्री बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर बेसिकली। उसमें जो बिजनेस ड्राइवर्स होते हैं जो कंपनी के लिए जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल कम्युनिटीज होती हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं। तो ये सारे जो लोग होते हैं वो किसी ना किसी तरह से हमारे एक्सपोरेंट बिजनेस की जो इंडस्ट्री है उसको हम इम्पैक्ट करते हैं, या इनके ही इश्यूज को लेकर भी इंडस्ट्रीज को अपना कंप्लायंस लेवल बना के चलना पड़ता है, या इनका एक बैलेंस हमेशा उसको मेंटेन करके चलना होता है। तो इन सबको मेंटेन करने में इन्वायरमेंट पे जो है वो बहुत ज्यादा भूमिका होती है। नेक्स्ट सर। तो अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको अच्छा सर अभी थोड़ी देर चलेगा या मतलब हमें सेकंड में इसको करें कैसे, बताइए। Sir, we can take a break or we can start it over. सर वॉइस ब्रेक हो रही है। Sir, if you want to continue, then we हेलो, can continue this session for today. Hello. Hello, am I audible to you? हाँ हाँ अब आई सर आवाज। यस, जी सर, अपन कंटिन्यू कर सकते हैं सर, वी कैन कंटिन्यू। ओके ठीक है, हाँ चलिए ओके। ओके। हाँ, तो अभी ये देखिए जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन अपस्ट्रीम है जो हम लोगों का जो बाड़मेर में है, इसमें क्या बिजनेस साइकिल होती है बेसिकली। इसमें सबसे पहले एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज होती हैं। एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज में कुछ वहाँ पे एक कुछ मेथड्स होती हैं जिसके कारण वो देखते हैं कि
आपका वहाँ पे ऑयल है या नहीं, या हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसमें बेसिकली कुछ वेव्स के थ्रू या कुछ साउंड वेव्स के थ्रू ये देखा जाता है बेसिकली कि आपके जो अर्थ है, जो बेस है, उसमें किस तरह की रॉक्स हैं या किस तरह से उसमें आपका ऑयल, क्योंकि ऑयल जो होता है वो बेसिकली कुछ तरह के सेडिमेंट्री रॉक्स होती है पर्टिकुलर, उसी में ऑयल होता है, हर रॉक में ऑयल नहीं मिलता है। तो वो इस मेथड एक्सप्लोरेशन की मेथड में वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि वहाँ पे ऑयल होगा या नहीं होगा। उसके बाद में फिर एक वेल ड्रिल करके भी देखा जाता है कि अगर यहाँ पे मान लो यह हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑयल हो सकता है, तो वहाँ पे ऑयल है ही या नहीं है, वो हम प्रॉपर फिजिकल वेल ड्रिल करके ही देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू वो पता नहीं चलता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट साइकिल होती है उसमें अप्रेजल एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। उस साइकिल में बेसिकली उस फील्ड में देखा जाता है कि रियली वहाँ पे कितना ऑयल है। अगर वो ऑयल है तो उसको अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोड्यूस करने में जितना हमारा खर्च होगा, जितना सेटअप लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो वायबल है या नहीं है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बेसिकली इसमें देखी जाती है। सेकेंड होता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। तो जब हमें पता चला कि यहाँ पे ऑयल है, उसके बाद में हमने उसको कंफर्म किया, उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे हमारा कमर्शियली वायबल प्रोडक्शन है या नहीं है। उसके बाद में फिर हमने देखा कि वहाँ पे आपका प्रोडक्शन वायबल होने के बाद में वहाँ से हम प्रोडक्शन करेंगे। और हर एक रिजर्वायर की एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद में उस फील्ड को अबंडेंट कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट जो है बिजनेस प्रोसेस की जो पिक्चर है, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे सर। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें आपको और एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है, मतलब क्या क्या स्टेजेस होती हैं बेसिकली इस तरह के ऑपरेशंस में। तो एक्सप्लोरेशन होता है जिसमें ड्रिलिंग होती है। ठीक है, प्रोडक्शन होता है जिसमें ऑनशोर प्रोडक्शन होता है जो अर्थ पे होता है। ऑफशोर प्रोडक्शन होता है जो कि सी के अंदर फैसिलिटीज होती हैं, जैसे बॉम्बे हाई ऐसा आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से प्रोडक्शन होता है वेल से। फिर अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे बाड़मेर में मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल है जगह, तो वहाँ पे इन वेल से जब ऑयल आता है उसको फिजिकली सेपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइंस यूज़ की जा सकती हैं, ट्रक यूज़ की जा सकते हैं। और उसके बाद में फिर स्टोरेज फैसिलिटीज में जाता है, या फिर उसको फर्दर आगे आपके पेट्रोकेमिकल या रिफाइनरीज में भेज दिया जाता है। तो ये बेसिकली एक जनरल ओवरव्यू है इंडस्ट्री का। नेक्स्ट सर। तो अब देखिए जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो बेसिकली होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं ईएनपी सेक्टर के कारण, तो उनको हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं। ह्यूमन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर बेसिकली जिसको बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एटमॉस्फेयर, थर्ड एक्वेटिक और फोर्थ टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मीन्स बेसिकली लैंड इम्पैक्ट। सो नेक्स्ट सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। हेलो हेलो। यस सर। हाँ हाँ ओके, मुझे लगा शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ नो नो सर, तो यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू। या ओके। सो अभी जो सर इसमें अभी हम जो देख रहे थे आगे कि बिजनेस ड्राइवर्स क्या हुए, जो इम्पैक्ट को हमने तीन चार तरीके में डिफाइन किया है। अब इसको थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट सिस्टम से लिंक उसका करने के लिए जैसे स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको हम आईएसओ 14000 भी बोलते हैं, आईएसओ 14000 2015 का ये एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड अभी शायद आपके कोर्स में नहीं है, इस बार में भी आगे आएगा, या जब होएगा तो उस टाइम हम इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो बेसिक साइकिल होती है वो होती है प्लान डू चेक एंड एक्ट, इसको पीडीसीए साइकिल बोलते हैं। ओके, तो जब भी कोई सिस्टम डेवलप किया जाता है या जब भी हम कोई इंडस्ट्री का या किसी का भी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो उसमें ये बेसिकली चार स्टेप होती है। तो वैसे ही इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में भी यही चार स्टेप्स होती हैं जिसमें कि प्लान करते हैं। जैसे प्लान करना है तो आप इंडस्ट्री को जब प्लान करोगे तो उसमें देखा जाएगा कि कौन से किस तरह की इंडस्ट्री होगी, उसमें क्या होगा, उसमें क्या पॉल्यूशन होगा, क्या सोर्सेज होंगे, वो कैसे इमिट होंगे,
ठीक है, वो पूरा प्लानिंग फेज में होता है। डू में फिर उसके पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आते हैं कि एयर पॉल्यूशन कैसे कम किया जाएगा, वाटर पॉल्यूशन के लिए कैसे हम ईटीपी लगाएंगे या कैसे एसटीपी लगाएंगे। उसके बाद में फिर जो ये प्लान और डू वाली जो है ये स्टार्टिंग स्टेजेस है। सेकंड स्टेज में हम चेक करते हैं बेसिकली वी मेजर एंड कंपेयर कि हमारा जो सिस्टम हमने प्लान किया था इट इज वर्किंग और फाइन और नॉट। देन अकॉर्डिंगली हम चेक चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो फिर हम उसके मेजर्स फिर डिफाइन करेंगे कि अभी हम ये नहीं तो ये करने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। उसी तरह से ये एक साइकिल हमेशा चलती रहती है मैनेजमेंट सिस्टम की। तो अभी जो नेक्स्ट स्लाइड सर। Student, due to some network issue, sir is joining again, and please be patient. If you have any queries, if you have any kind of doubts, you can just share that doubt in the chat box. Just share your doubt in the chat box, or you can ask any type of question which is related to the हाँ topic. Hello. हाँ हाँ हेलो, एक्चुअली एक कॉल आ गया था उसके कारण शायद डिस्टर्ब हो गया। सो जस्ट मिनट। Okay, sir. Okay, sir. You can continue. हाँ सो अब इस स्लाइड में देखिए जब भी कोई इंडस्ट्री आती है या इंडस्ट्री होती है तो उससे क्या क्या किस तरह का एमिशंस हो सकता है उसका एक मैनेजमेंट सिस्टम में एस्पेक्ट इम्पैक्ट स्टडी की जाती है बेसिकली। तो उसी को जस्ट हमने इसमें लिबरेट किया है कि जो एक इंडस्ट्री होती है उससे क्या क्या पॉल्यूशंस हो सकते हैं या क्या क्या उसके सोर्सेज होते हैं। तो इसमें सर नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए तो वो एक एक डिस्प्ले होते जाएंगे। तो इस स्लाइड में आप बेसिकली देखेंगे कि कुछ जस्ट एक पिक्चरियल फॉर्म में दिया है कि कौन सी एक्टिविटीज होती हैं कुछ जैसे कि ओके। सो जस्ट नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ तो अब इसमें देखिए कि जो एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट्स हैं या जो एयर पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स हैं किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से हो सकते हैं क्या हो सकते हैं। तो उसमें एक तो फ्लेयर होता है, ठीक है। जो फ्लेयरिंग बेसिकली ये होता है कि जो एक्सेस गैस होती है जो ऑयल के साथ में जनरेट होती है या निकल के आती है उसको मैक्सिमम तो यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो एक्सेस हो जाती है जो बच जाती है उसको फ्लेयर करना होता है जिसका फर्दर यूज़ नहीं कर पाते। तो उसको फ्लेयर में जिस तरह से नीचे पिक्चर्स में देखिए आपको फ्लेयर ऑफशोर में फ्लेयर किया हुआ एक पिक्चर दिखाया है। जो सी में जो फैसिलिटीज़ होती है वहाँ पे वो फ्लेयरिंग किस तरह से करते हैं। वैसे ही कंबशन प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि डीजल सेट्स होते हैं, गैस इंजन्स होता है, बॉयलर होता है।
वहाँ पे गैस का कंबशन होता है, तो इनसे जो इमिशन होता है वो सोर्स होता है एयर पोल्यूशन का। फ्यूजिटिव इमिशंस होते हैं जहाँ पे स्टोरेज होता है, वहाँ पे कुछ फ्यूजिटिव इमिशन होते हैं जो कि ऐसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स के रूप में जनरेट होते हैं। सॉइल डिस्टर्बेंस होता है व्हीकल मूवमेंट के कारण, उसके कारण एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं। तो इनमें जो प्रिंसिपल इमिशन की गैसेस होती हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक्स, कार्बन एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ये बेसिकली एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट एक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री से जनरेट हो। नेक्स्ट सर। सर हेलो। जय सर। जय सर। चलिए इसमें कि लैंड डिस्टरबेंस होता है, जैसे पाइपलाइन बनती है या कोई फैसिलिटी बनती है इंडस्ट्री की, हेलो तो जय वहाँ का सर, आई जो हैव अ डाउट लैंड है हियर। या जो हाँ बताइए। ये सर इसमें जो थर्ड इमेज है, जैसे फर्स्ट और थर्ड इमेज, इसमें गैस हमेशा ही जलती क्यों रहती है? जैसे काफी बार देखा है। आपकी आवाज थोड़ी करेंगे। सर एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ हाँ सर ये फर्स्ट और थर्ड इमेज में जैसे ये गैस बर्न हो रही है इसमें, हाँ हाँ। ये हमेशा ऐसे बर्न क्यों होती रहती है? मतलब इसको क्यों बर्न कर रहे हैं? देखिए इसमें दो चीज़ें होती है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि एक्सेस गैस होती है, क्योंकि ऑयल जो होता है उसके साथ में कुछ गैस भी जनरेट होती है, साथ में ऑयल के साथ गैस आती है। तो जो जैसे हमारे एमपीटी में होता है कि हम लोग गैस जो आती है उसको वापस से यूज कर लेते हैं बॉयलर्स में या गैस इंजन्स में, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन उसके बाद में भी कुछ एक्सेस गैस होती है या फिर कुछ गैसेस होती है जिसका कि आप यूज नहीं कर सकते, जिसमें कि अदर कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं। तो वो जो गैस होती है उसको फ्लेयर करना होता है। तो फ्लेयर करने में एक्चुअली इसको सिंपल एटमॉस्फेयर में छोड़ते नहीं है, ठीक है। उस फ्लेयर को एक टिप पे एक बर्नर लगाया जाता है गैस का, गैस के जैसा ही एक बड़ा बर्नर रहेगा, उससे उसको वहां पे इसको कंटिन्यूसली जलाते रहते हैं। जैसे आप ग्रीन हाउस गैस इमिशन पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि मेथेन गैस जो होती है वो ज्यादा हार्मफुल पॉल्यूटेंट है कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। तो मेथेन गैस को आप एटमॉस्फेयर में ऐसे नहीं छोड़ सकते, जो हमारा एनवायरमेंट रेगुलेशन बोलता है उसमें आप गैस को सीधे एनवायरमेंट में डायरेक्टली नहीं छोड़ सकते। तो वहां पे फ्लेयर की जो टिप रहती है उस पे उसको जला देते हैं बेसिकली, फायर करके। तो वो जलाने से क्या होता है कि जो उसमें मेथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड या उसमें अदर कंपोनेंट में वो बर्न होके डिस्पर्स हो जाती है, जो कि लेस हार्मफुल इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को। तो इसलिए जो फ्लेयर होती है ये एक तो कंटिन्यूस जलना है, मतलब फ्लेयर अगर जलती है तो आपका जो ऑयल एंड गैस उसका ये भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में प्रेशर, हाई प्रेशर इंडस्ट्री है ये एक्चुअली, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अर्थ जो आप ऑयल निकाल रहे हो तो उसमें भी एक अर्थ का नेचुरल प्रेशर है, आपका सिस्टम में भी हमेशा वो प्रेशराइज सिस्टम रहता है। तो ये फ्लेयर जितना अच्छा होता है उतना आपका सिस्टम सही से काम कर रहा है, इस तरह का इंडिकेशन माना जाता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे हर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आप देखेंगे वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लेयर रहती है, जो कि एक्सेस गैस को बर्न करके एटमॉस्फेयर में रिलीज करती है। ठीक है। हेलो। थैंक यू सर। हाँ सर। सो नेक्स्ट स्लाइड में जो है टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट्स देखेंगे आप। तो टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट्स में जब भी कोई इंडस्ट्री या कोई भी सेटअप आता है वो लोग नेचुरल होता है, वो टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। ठीक है। तो ये जो है टेरेन है, या जैसे अगर आपका वेस्ट प्रॉपर अगर आपने डिस्पोज नहीं किया है, जो ऑफशोर फैसिलिटीज होती है वहाँ पे जो ऑयल स्पेशल स्पिल अगर होता है तो वहाँ का भी नेचुरल जो है वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है।
तो वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में उसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट सर। तो इसके बाद में जो आते हैं वो आपके एक्वेटिक इम्पैक्ट्स आते हैं। तो एक्वेटिक इम्पैक्ट्स बेसिकली जो होते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में रहेंगे सर। नेक्स्ट प्लीज। इसके पहले वाला सर एक प्लीज। तो इसमें जो एक्वेटिक इम्पैक्ट्स हैं वो बेसिकली जो ऑपरेशंस होते हैं जो कि सी में होते हैं, ऑफशोर होते हैं, वहाँ पे बेसिकली ये एक्वेटिक इश्यूज ज़्यादा आते हैं। तो उसमें जो प्रोड्यूस वाटर है या जो वॉश वाटर है वो डिस्पोज करना है, ड्रिलिंग का वेस्ट है सी में जो जनरेट होता है, प्रोसेस वाटर है, सीवरेज है, सैनिटरी डोमेस्टिक वेस्ट है, स्पिल्स है, लीकेज है, तो वो बेसिकली वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है। वैसे ही अगर ये ऑनशोर में अर्थ में अगर प्रॉपर डिस्पोज नहीं हो रही है चीज़ें तो फिर वो इरिगेशन सिस्टम या ड्रिंकिंग वाटर के जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पर पॉल्यूशन कर सकती है। तो ये बेसिकली जो इन जनरल इम्पैक्ट्स होते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के, वो यहाँ पे हमने जनरल डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट इसमें लीगल फ्रेमवर्क हैं। अगर हम जस्ट एक जनरल आइडिया आपको मैं दे देता हूँ, उसके बाद में फिर हम डिटेल में अगर नेक्स्ट क्लास कभी होगी तो फिर हम उसको देखेंगे। तो जो इन्वायरमेंटल लीगल फ्रेमवर्क है इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन, जो एक जनरल है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48A इज देयर which actually says that the directive principle है basically to of state policy. So Article 48A was inserted which enjoins the state to make endeavor for protection of improvement of environment and for safeguarding the forest and wildlife of the country. कि that they have to uh, protect the environment, improve the environment and safeguard forest and its wildlife of the country. ठीक है। वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51AG है जहां पे हर एक व्यक्ति को, सिटीजन्स को, हम लोगों को डायरेक्टिव दिया हुआ है दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ओके। सो दो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं जिसमें आर्टिकल 48 में गवर्नमेंट को यह निर्देश दिया गया है कि आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको सेफ गार्डिंग करेंगे। वह और आर्टिकल 58 में सिटीजन्स को बोला गया है, हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों की भी ये ड्यूटी है कि हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है। उसके अलावा फिर जब लॉ बने इन्वायरमेंट, हाउ इन्वायरमेंटल लॉ आर फ्रेम्ड इन इंडिया, सो CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, and state pollution control board collect the data required for formulating act and rules as well as enforcing implementation of environmental act and rules. तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है। ओके। उसके बाद में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके बाद में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो कि इन्वायरमेंट रेगुलेशंस से रिलेटेड एक्ट या रूल्स बनाते हैं और उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, बट आपके जो स्टेट बॉडीज हैं, जैसे मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने एक रूल बना दिया कि यह पॉल्यूशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर लिमिट का, लेकिन स्टेट उस लॉ को और स्ट्रिंजेंट भी बना सकती है या उसको कम कर सकती है। जैसे आपने एक एग्जांपल के लिए देखा होगा मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, जिसमें सेंटर ने काफी सारे पेनल्टीज इम्पोज कर दी थी, लेकिन कुछ स्टेट ने कहा कि नहीं, हम इतनी पेनल्टी नहीं लेंगे। सो इट्स ए स्टेट ज्यूरिडिक्शन की वो उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट सर। सो अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे लॉज हैं
उसमें बेसिकली environment regulation notification framed by the regulatory authorities, that is Ministry of Environment and Forest and Climate Change, Central Pollution Control Board एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो उन्होंने नोटिफिकेशंस या रेगुलेशन बना दिए विच इम्पोज फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द इमिशन एंड डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स, नॉइज एक्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, केमिकल मैनेजमेंट रूल्स। उसके अलावा नेशनल पॉलिसीज होती हैं जो डायरेक्टिव इश्यू करती है MOEF और क्लाइमेट चेंज को फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, और MOEF और जो मिनिस्ट्री होती है ये भी नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टिव इश्यूज करती रहती है हर इंडस्ट्री और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को। कुछ डायरेक्टिव और गाइडलाइंस आते हैं जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट टाइम टू टाइम बनाते हैं, गाइडलाइंस बनाते हैं। उसके अलावा जो हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात कर रहे थे पहले, जिसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बेसल कन्वेंशंस, मार्पोल, ये आते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ये जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। बेसल कन्वेंशन बेसिकली आपका हैजार्डस वेस्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। और मार्पोल जो है वो आपका ऑफशोर फैसिलिटीज में सी के अंदर आप किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं उससे रिलेटेड एक ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसको भी सारी साइनिंग कंट्रीज फॉलो करती हैं और ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। अब इन्वायरमेंटल एक्ट्स और रूल्स में अगर हम देखें तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एंड रूल्स 1974 है। एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एंड रूल्स 1981 है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड रूल्स 1986। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2001। बैटरीज में आपका जो लेड एसिड बैटरीज होती है जो कार में, जीप में, गाड़ियों में यूज होती हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे डिस्पोज करना है, उसके बारे में है ये। वेस्ट रिलेटेड जो रूल्स हैं वो हजार्डस वेस्ट के रिलेटेड रूल हैं। सॉलिड वेस्ट में जो आपके म्यूनिसिपल वेस्ट आते हैं उसके लिए भी रूल बना हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट जितना जनरेट होता है उसको कैसे हैंडल करना है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट जो अ, हम लोग जब घर बनाते हैं या कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है तो उसके वेस्ट को कैसे हैंडल करना है उस पर भी रूल्स हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो मैंने आपको बताया था कि मोबाइल्स हैं या फिर आपके टीवी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसको कैसे उसको मैनेज करना है। बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से जनरेट होता है उसको कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है, उसमें है। वैसे ही कुछ केमिकल्स होते हैं जो काफ़ी हजार्डस होते हैं या काफ़ी खतरनाक होते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है उसके पे रूल है। मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स। नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन है, नॉइस लिमिट्स के बारे में है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, जब भी कोई इंडस्ट्री सेटअप की जाती है तो उसके लिए पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज होती हैं जिसमें ये देखा जाता है कि वो इंडस्ट्री क्या यूज करेगी, किस तरह का प्लांट होगा, किस तरह का पॉल्यूशन सोर्स होगा, उसको पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से मेजर्स अडॉप्ट करेंगे। सो दीज आर ऑल कवर्ड इन दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। डीजल जनरेटर्स में है कि एक डीजल जनरेटर होगा उसमें कितनी हाइट की चिमनी होगी, कितना वो किसी नॉइज लेवल को इमिट कर सकता है, क्या उसका पॉल्यूशन लेवल होगा। पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट एंड रूल्स 1991 है, उसमें बेसिकली दे गिव दैट कि अगर कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कंपनसेशन कैसे होगा, उसको किस तरह से इंडस्ट्री कंपनसेट करेगी। केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस रूल है। इमिशन स्टैंडर्ड्स है मोटर एंड व्हीकल्स के। सो ये बेसिक बेसिक हमारे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट हैंडलिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है, जिसमें कि कई तरह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको कि हमको या इंडस्ट्रीज को फॉलो करना होता है। सो ये डिटेल में अगर हमारे आपके कोर्स कंटेंट में रहेगा तो हम उसको डिटेल में और डिस्कस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो अभी तक के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, और कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप बताइए, और नेक्स्ट अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हम फरवरी में एक लेक्चर और रख सकते हैं। Student, if you have any type of queries, any type of question regarding the topic, you can ask. Okay. Okay, thank you so much, sir, for sharing your valuable time and sharing your valuable knowledge with us. And our student will really will get benefit with this type of knowledge, and
this type of slides which you have shared with us. Thank you so much, sir. And now, Principal S.K. Vishnu sir already joined us. So I welcome, sir. I welcome you, sir. Principal, sir. Am I audible to you? So thank you all, sir. It's a very nice to interact with all of you, and also that there are good questions asked by the participants, and I hope that this will helpful for the improving the knowledge about environment. So if any specific thing is there, just you can communicate to Rahul, and then we'll sort out the queries if any is there. And also if any specific thing which the student want to have discussed or understand, that we can further cover in next classes. No, sir. Actually, Principal, sir, due to some network issues, they are not connecting with us. And we just wait for 1 minute. We are trying to. Yes, sir. No issue, sir. No issue. हेलो, लेकिन अपने इस काम को अभी तक प्रशिक्षण करेंगे, उत्पादन बनाएंगे, लेकिन बाजार में हम बेहतर कैसे इसको बेच सकते हैं, बाजार में अपने सामान कैसे गुणवत्ता बनाकर बेचें, उससे आमदनी बढ़े, और एसएचजी समूह के माध्यम से आप लोग और बेहतर काम करें, तो समिति तो अपना काम करे, साथ साथ महिलाओं की जो ये स्वयं सहायता समूह है उसको भी बेहतर काम करे और अपने काम को आगे ले जाए, और की भागीदारी को आप क्योंकि आपकी समिति में हेलो महिलाओं का वैसे घर में पूरा योगदान है इस काम के अंदर, लेकिन समिति में भी वो अपने और अच्छा योगदान कर महिलाएं इस काम में और उनका पूरा काम कर सके, वो उनके उन्हें भी अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करें। तो मैं अपनी बात को ही हेलो सर। हाँ, कॉल आ गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी सर। हाँ सर, I welcome J.S. Gelo sir on behalf of Engineering College Badmer, because I am listening your presentation throughout. In between some call is there, so it's really a wonderful presentation, and we give you more and thanks to you and Rahul Sharma sir also, because he is very keen and very punctual to organize such kind of webinar to promote our students, and basically promotion in the sense that whatever you are doing in the field, our student in the first year, they understand what kind of environmental impacts are there, what kind of their effect, how we cure it, what kind of precautions we are taking. So I am very much thankful to you and your team, because you are always keen to share your experts knowledge with our students, because these are the budding engineers, and your motivation and guidance always helpful to groom them. And we are requesting you, whenever you are free, sir, you interact with our students, and our faculty and students are almost seems same, because they are very much young in his field, because they recently completed their education. So whenever Gelo sir, you are free, you most welcome visit our institute also whenever you are in Badmer, because now the COVID situation is more or less in decline started. So once again, I am welcome you and your team also, and we give more thanks to Harmeet Sera ma'am and Rahul sir also. Thank you, sir.
Very true, sir. Rahul ji is very punctual, and he was also sit behind me since almost a week time to fix the time and then deliver the lecture. Yeah, definitely. So he is very interested in that, and it's a very nice to see you, sir, and interact with you. Whenever I will have time, definitely I will visit. So because by this interaction, we also remember our college life and then how Yeah, exactly. we were gone through with this requirement. So sometimes the resource constraints and these issues were there also we have faced That I to understand, in the sir, but industry. whenever you are free, because it's your college, sir. You spare time for your youngers. Definitely, sir, definitely. So it's a very nice to see you all, and thank you very much, sir, for the nice words. And always we are here to help for the students, and I will try to deliver any other lecture or any other thing which if a student want to understand more in depth. So I am available, sir, no issue. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much, Jay sir, and thank Thank you, you, sir. Rahul. आप सब जानते हैं कि Thank you. केन वेदांता Thank तेल you, Jay उत्पादक ji. Thank you, कंपनी है जो Krishna sir. बाड़मेर और गुड़ामाला ठीक है, क्षेत्र sir. से See you केया then. तेल Thank का you. उत्पादन कर रही है Okay. और You may इसके leave now.